Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today I have selected a topic, and that is control structure. It's a chapter number 8 and class 6. Many people were demanding to upload the video on this topic because it's related to the Alice. So, we are going to cover some aspects in an easy way and by using the easy terms. The first thing is I'm just going to open the book here, and you can see the control structure. Here you can see the picture of an airplane, and person is controlling everything by using the multiple tools and controls through this. So that is why it's really amazing. You can say the title of the chapter, and after that you can see a small instruction on the right side. Here's a smoking prohibited. I would like to talk about this, you can say, instruction, but in a separate lecture. But it's really a good thing that if we are studying computer science and especially practical, we're going to do the practicals. But in this picture, you can find so many better things. Lights in front of you, so many lights, and then control. And the one hand, uh, able to control everything. So, so many themes are in this control structure. So, move ahead and find out the first paragraph. I'm not going to read it completely, but I'm just going to tell you some things through the um, easy terms and through the writings. कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजी नहीं लगती, सो आई एम जस्ट कन्वर्टिंग माय मीडियम इनटू उर्दू, इंग्लिश टू उर्दू. वी परफॉर्म मैनी डिफरेंट एक्शंस एवरी डे. हम डेली बहुत सारे काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी वेक अप एवरी मॉर्निंग, ब्रश आवर टीथ एंड ड्रेस फॉर स्कूल. It's important to perform some of these actions in sequence where one action follows another. We might brush our teeth and then dress, but we cannot do both at the same time. Similarly, in algorithm, we have a set of instructions that should be executed in certain sequence. There are other events, however, that can occur together or simultaneously. For example, if you are in a hurry, you can eat your breakfast as you get dressed. When you do some actions together, they're called simultaneous events. इसी एक पैराग्राफ में दे आर एक्सप्लेनिंग समथिंग जिनको मैं उर्दू में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि हम डेली ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनको हम सीक्वेंस के साथ करते हैं. लाइक हम लोग अगर ये बात करें कि वी डेली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड जस्ट डू द टूथब्रश, perform this action. After performing this action, we just start our day, and then we start taking breakfast, offering prayers, and everything is in sequence. We perform in our as a daily routine, and we go to the school, and then we just study the same books but with the different chapters. मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं बट डेली हमारी रूटीन जो है वो एक सीक्वेंस में चल रही होती है, और इस सीक्वेंस को हम कोशिश करते हैं कि हम इसको चेंज ना करें. अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सीक्वेंस में चल रही हैं, एंड सम थिंग्स जो कि आप कह सकते हैं कि एक साथ वर्क करती हैं. जैसे हम लोग कभी-कभी ऐसा करते हैं कि हम लोग नाश्ता करते हुए जो है वो अपनी चीज़ों को समेट रहे होते हैं साथ में, तो हम एक वक़्त में 2 काम भी कर रहे होते हैं. लेकिन मोस्टली ये होता है कि हम अगर सीक्वेंस के साथ काम करते हैं तो हमारी लाइफ़ बहुत ज़्यादा ईज़ी रहती है इन तमाम स्टेप्स के साथ. हम अब बात करते हैं नेक्स्ट में कि इन Alice we moral a story and then think of the various events it should have. Next, we break down these events into simple instructions. Control structures help us arrange and execute these instructions properly.
तो सबसे पहली बात ये है कि आलिस में हम एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करते हैं कि जिसके मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है व्हेन वी क्रिएट अ स्टोरी वी जस्ट थिंक अबाउट इट दैट व्हाट स्टेप्स एंड व्हाट ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू ऐड इन अ स्टोरी एंड देन वी जस्ट मेक अ प्लान लॉजिकली का मतलब ये होता है कि आप अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके बाद आप जो है वो उसको सीक्वेंस में बाकायदा उसको जो है ना यू कैन से कि आप उसको प्रॉपरली शेप देते हैं एंड आफ्टर दैट जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है हेल्प अस अरेंज एंड एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। आपने जो भी सोचा है आप उस स्ट्रक को पहले आप अपने माइंड में सोचते हैं सारी इमेजिनेशंस में और उसके बाद आप क्या करते हैं आप उसका एक स्ट्रक्चर बना के अपने सामने लेके आते हैं और फिर आपको लगता है कि हाँ अब आप इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो आप नेक्स्ट मूव करते हैं टू डू योर प्लान। नेक्स्ट में देख लेते हैं कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि हम इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें हासिल करने वाले हैं। अब ये देखें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इन पे ये तमाम आपके DLOs हैं। जब आप लेसन प्लान करते हैं यू कैन जस्ट यूज़ दीज DLOs टू इन्हांस योर लेक्चर्स। ये सबसे पहली चीज़ जो है और बहुत ही अच्छे कंपोज्ड फॉर्म में आपके पास DLOs कंप्यूटर के मौजूद हैं। The differentiate between sequential and simultaneous actions कि आपका सबसे पहले तो ये है कि सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियस एक्शंस में फ़र्क पता चलेगा। सीक्वेंशियल में ये है कि एक स्टेप के बाद हम दूसरा काम करते हैं, साइमल्टेनियस स्टेप्स में क्या होता है कि आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, दिस इज़ अ डिफरेंस। और सीक्वेंशियल को हम ये भी कह सकते हैं कि डू इन ऑर्डर एंड साइमल्टेनियस जो है वो हम डू टुगेदर स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं यहाँ पर। फिर है डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड देयर इम्पोर्टेंस इन प्रोग्रामिंग कि अगर आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एलिस तो हाउ दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग करेंगे यूज़ द डू इन ऑर्डर कंट्रोल स्ट्रक्चर। हम यूज़ करेंगे डू इन ऑर्डर को कि हम किस तरह से वी कैन वर्क थ्रू द डू इन ऑर्डर and use do together control structure, and after that we will work with the do together control structure by making a scene or by applying in a practical. Recognize nesting of the instructions. What is meant by the nesting of instructions? It is just you can say the overlapping of anything कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को ऐड करना, that is called nesting instructions and we use this option in Alice as well and multiple programming जो हम करते हैं उसमें भी हम nesting की option use कर सकते हैं। After that, understand the importance of trial and error strategy. This इस strategy के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। Trial and error strategy को हम discuss करने जा रहे हैं जो कि हमारे आगे बहुत सारे programs में भी इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि what is basically the sequential simultaneous actions। यहाँ पर you can see the two persons at a time। आप दो लोगों को देख सकते हैं। Consider an action we do many times in a day, walking to take a step, you move your left leg forward and your right leg backward. Right, left, backward, okay. At the same time, you swing your right arm forward and your left arm backward. For the next step, you move your right leg forward and your left leg backward. At the same time, your left arm swings forward and your right arm backward. You can see that we move our two legs and two arms simultaneously. हम लोग इसको यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब हम वॉक करते हैं तो हमारा सीन क्या होता है कि हम लोग अगर अपना एक लेग जो है मूव करते हैं तो साथ में हमारी आर्म भी मूव होती है। हर इंसान का चलने का स्टाइल डिफरेंट है लेकिन सीक्वेंस एक ही है और उसका जो सीक्वेंस होता है उसमें आप देखें कि किस तरीके से आप जो है अपनी बॉडी की मूवमेंट चेक कर सकते हैं कि एक वक्त में इफ़ यू आर स्पीकिंग समथिंग वाइल यू आर वॉकिंग, जब आप चल रहे हैं तो आप कुछ बोल भी रहे हैं एंड यू आर मूविंग योर हैंड्स लेफ्ट एंड राइट एंड योर नेक एंड योर आईज, एवरीथिंग इज इन एक्शन। तो इस तरह के तमाम एक्शंस को हम कहते हैं कि दीज एक्शंस आर द साइमल्टेनियसली एक्शंस मींस द डू टुगेदर। हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने कभी गौर नहीं किया
हम लोग एक हमेशा समझते हैं कि वी आर जस्ट लिविंग आवर लाइफ इन एन ऑर्डर, हम एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज वी आर just when we focus on the style of our life, we can see that sometimes we are using the method do in order. We follow the instructions one by one, and then just we are moving ahead by following the procedure. But sometimes we feel that we are just using the do together statement, and do together statement means sometimes हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं, and this is the difference. जैसे मैंने अपने students को पहले भी बताया था कि the sequential means do together, do in order, and the simultaneous means is do together. So just keep in your mind, a simultaneous action is the opposite of sequential action. Exactly, क्योंकि उसमें हम opposite इसलिए कहते हैं कि sequential में आपके जो भी steps होंगे वो step by step काम करेंगे। हम सुबह उठेंगे या हम रात को सो जाते हैं, फिर हम सुबह उठते हैं, फिर सुबह उठते ही हम लोग जो है वो अपने टीथ ब्रश करते हैं, फिर हम वी ऑफर प्रेयर, एंड देन आफ्टर दैट बहुत सारे लोगों के डिफरेंट काम है कि कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बट दे डू इट डेली. A sequential action is where one action happens at a time. To take several steps, you move one leg forward and then opposite leg. It's not possible to take both steps at the same time. To take multiple steps is a sequential action. Sequential and simultaneous actions are important in programming. This is because some actions happen simultaneously while others happen in sequence. There are two different yet relevant actions. ये दोनों एक ही तरह के हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आता है. उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की. कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर कि इसमें क्या चीज़ है. जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हम जो है वो सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियस का मतलब क्या है. A program consists of both sequential and simultaneous events. These events could be executed repeatedly. कि एक एक्शन को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं. जैसे कि एक पर्सन है, उसने बार बार एक मूवमेंट करनी है, ही इज जस्ट वॉकिंग कॉन्टिन्यूसली, सो हम कहेंगे कि एक एक्शन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. समटाइम्स an event will be carried out only if a certain condition is met. When writing programs and designing games, we must recognize these different events. We should also determine how to implement these events. To do this, we use control structure extensively. हमारे पास एक स्क्रीन मौजूद है एलएस में जिसमें हम काम करते हैं. वी डू दिस थिंग लाइक मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ इसके बाद करके दिखाती हूँ बाय यूजिंग द एलएस, ताकि आपको समझ आ जाए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली चीज़ क्या है. A statement that controls the execution of set of instructions. Set of instructions का मतलब क्या है. कंट्रोल स्ट्रक्चर ये करता है कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एक साथ रन करने में या सीक्वेंस वाइज रन करने में हमारी मदद करता है. वो तमाम प्रोसीजर जो कि डू टुगेदर एंड डू इन ऑर्डर को रन करने में हमारी हेल्प करता है और उसके सीक्वेंस को फॉलो करता है. दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर बिकॉज इट एग्जीक्यूट्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस. A few examples of control structures are sequential execution using do in order, parallel execution using the two together, conditional execution using if, else statement, and repetition using count and while. In this chapter, we will study the structures do in order and do together. Later, we'll learn the other structures. यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पर कुछ बातें हो रही हैं कि हम कुछ स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं. एक सीक्वेंशियल जो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें डू इन ऑर्डर आता है, एंड डू इन ऑर्डर के थ्रू यू कैन जस्ट मूव द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप के पहली चीज़ करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, देन थर्ड वन एंड द फोर्थ वन. और अगर हम बात करें कि डू टुगेदर जो है उसमें ये होता है कि आप कंडीशन एक साथ में बहुत सारी चीज़ों को रन कर रहे होते हैं.
और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो कंडीशनल एग्जीक्यूशन की है, जहाँ पे हम इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। अब इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर ये काम पर्सन जो है ये काम करेगा तो इसको ये होगा, लाइक आपने एक पार्टी अटेंड करनी है, यू हैव टू अटेंड द पार्टी, अदरवाइज अगर नहीं करते तो आपको फाइन देना होगा। तो हम क्या कहते हैं कि इफ़ द पर्सन इज अटेंडिंग पार्टी देन ओके, अगर नहीं करता इफ ही इज नॉट अटेंडिंग एल्स, एल्स में क्या होगा कि उसको फाइन देना पड़ेगा। सो वी आर यूजिंग 2 ऑप्शन कि फर्स्ट में वो पर्सन इज अटेंडिंग पार्टी, दैट्स फाइन, इफ नॉट देन ही इज पेइंग फाइन। सो these are the 2 things and 2 conditions, थर्ड कंडीशन नहीं है उसके पास। तो these are called the conditions जिनको हम आगे एलिस में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज़ how you can use the do together and do in order structure here. So इसके लिए मैं सबसे पहले आपको जो है वो एलिस ओपन करती हूँ यहाँ पर, एंड कोई भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं। वी जस्ट चूज डेजर्ट सीन हेयर एंड वी चूज ए कैमल हेयर, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यू कैन फाइंड आउट द मैनी कैमल्स इन द प्रैक्टिकल, सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट चूजिंग द सेम स्ट्रक्चर हेयर। तो मेरा यहाँ पर एलिस जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, सो आई एम जस्ट गिविंग इट द टाइम टू ओपन द स्क्रीन। लेकिन हम यहाँ पर 2 और 3 कमांड्स करेंगे, फिर मैं उनको बताऊंगी कि आप कुछ भी उल्टी सीधी कमांड जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं बाईपैड को अप्लाई नहीं कर रही, बाईपैड ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारी मूवमेंट उसको मैं अप्लाई फ़िलहाल नहीं कर रही, वो इस वजह से बिकॉज आई जस्ट वांट टू जस्ट गिव द आइडिया ऑफ बाय यूजिंग द डू इन ऑर्डर एंड डू स्ट्रक्चर ऑर्डर। और बाईपैड पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने लंबे टाइम तक और कितना फास्ट वॉक करा सकते हैं, एंड दैट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर हमारे एलिस जो है वो सीन ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोबारा से हम सेटअप सीन पे जाते हैं, यहाँ से कोई भी क्लास चूज़ करते हैं, हम यहाँ से एनिमल्स की कोई क्लास चूज़ कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ से एक न्यू एल्क की ऑप्शन ये वाली ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कहती हूँ मैं कुछ भी चूज़ करती हूँ, सबसे पहले मैं इसको रोटेट कराती हूँ, रोटेट कराने के बाद मैं इस ऑप्शन को जो है लाइक दिस, और यहाँ पर मैं इसको रीसाइज करके इसका साइज़ थोड़ा सा कम करूँगी। तो साइज़ कम करने के बाद आई एम जस्ट टेकिंग एन अदर एनिमल, यहाँ से मैंने एक फॉक्स को लिया है, यहाँ पर मैं इस फॉक्स को एडजस्ट करती हूँ, और एडजस्ट करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू increase the size of this fox, and now I'm going to rotate it like this, I'm going to rotate it। और अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि we just go to the edit code option and here we just choose the thing like मैं सबसे पहले जो है elk को यूज़ करती हूँ, ये मैंने इसको किया तो मैं इसके ऊपर मूवमेंट अप्लाई करती हूँ। this elk is moving left or forward 0.2 and then सॉरी एक और ऑप्शन चूज कर लेते हैं, टर्न करे राइट लेफ्ट पे 0.25। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ से सेट पेंट इसका कलर चेंज हो जाए, इसका कलर कम्प्लीटली ऑरेंज हो जाए, और उसके बाद ये सेट ओपेसिटी से ये होगा कि ये गायब हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब हमने ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई की हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके बाद फॉक्स को चूज़ करती हूँ, यहाँ से मैं फॉक्स के साथ भी यही काम करने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द मूव ऑप्शन कि मूव करे फॉरवर्ड कितना 0.25, और उसके बाद आफ्टर दैट टर्न करे, टर्न होगा इसका लेफ्ट 0.25 हो जाएगा, यहाँ से हम 0.25 करते हैं। फिर हम करते हैं कि सेट पेंट ऑप्शन अप्लाई करते हैं, वी आर जस्ट सेटिंग द सेट पेंट ऑप्शन के जो हमारा फॉक्स है वो रेड हो जाए, और उसके बाद क्या हो कि नेक्स्ट में जो है वो हम सेट ओपेसिटी और उसके बाद ये गायब हो जाए। सो हेयर यहाँ पर अब जब मैं इसको रन करने जा रही हूँ तो मैं आपको फुल स्क्रीन दिखाती हूँ कि ये मूव किया, फिर उसके बाद उसका कलर चेंज हुआ और वो गायब हो गया। सेम इसी तरह से रेड होने के बाद शी इज़ डिसअपीयर्ड फ्रॉम द स्क्रीन, राइट। तो अब ये हुआ क्या कि पहले जो है
पहले हमारा जो है एल्क उसकी तमाम ऑप्शंस जो हैं वो रन हुई हैं, उसके बाद जो हमारा फॉक्स है उसकी रन हुई हैं। ये हमारा जो है वो डू इन ऑर्डर प्रोसीजर है कि सबसे पहले मूव किया, फिर टर्न किया। मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको आइडिया हो जाए। हम 1.0 करते हैं, यहाँ से हम जो है वो इसको 1.0 कर देते हैं, और ये जो है ओपेसिटी तो ठीक है, 0 ठीक है, एंड देन फॉरवर्ड forward 1.0 and again 1.0 and red and that's it. Let's run it. यहाँ से देखें, थोड़ा सा फास्ट किया, कलर चेंज हुआ एंड डिसअपियर्ड। ये फॉक्स का भी इसी तरह से हुआ एंड शी इज़ नाउ डिसअपियर्ड और हमारी स्क्रीन बिल्कुल खाली रहेगी। ये हमारा डू इन ऑर्डर प्रोजेक्ट है कि दैट वी आर यूजिंग द थिंग्स इन एन ऑर्डर। मैं यहाँ पर एक डू टुगेदर बॉक्स क्रिएट करती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं डू टुगेदर का एक बॉक्स लेती हूँ। यहाँ पे मैं जो फॉक्स की ऑप्शंस हैं उनको 1 बाय 1 इसके अंदर रखती हूँ, और उसके बाद यहाँ से जो है सेट पेंट एवरीथिंग आई जस्ट पुट इट हियर, और एक और बॉक्स में लेती हूँ डू टुगेदर, जिसमें मैं जो है वो दूसरा वाला जो एनिमल है उसकी ऑप्शंस को इसके अंदर सेट कर रही हूँ। तो पहली ऑप्शंस को इसके अंदर सेट करती हूँ, एंड आफ्टर दैट लेफ्ट वन, then set paint option, and then this arc. Okay, now let's see. I have the boots, everything. ये दोनों अब तमाम चीज़ें उन्होंने साथ में की हैं। मीन्स हमने ये देखें, मूवमेंट एवरीथिंग सब कुछ साथ में किया है। और अगर मैं कहूँ कि इसी के साथ ये चीज़ें भी कर ले, लाइक दोनों एक साथ करें, तो यहाँ से मैं डू टुगेदर की जितनी भी मतलब बॉक्सेस में ये चीज़ें हैं तो दोनों एक साथ एक्शन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो डू टुगेदर से क्या हुआ है कि दोनों ने एक साथ मूवमेंट की है। दोबारा से रन करते हैं तो देखिए दोनों की मूवमेंट एक साथ हुई है, कलर चेंज होना सब कुछ जो है वो साथ में हुआ। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल एंड simultaneous action, and you, in other words, you can say it's the due in order and do together statement. तो नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर करूँगी कुछ वॉकिंग के साथ और कुछ और प्रैक्टिकल के साथ कि किस तरीके से आप डू टुगेदर एंड डू इन ऑर्डर को मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।